Good morning, everyone. So today we will start with continue with the 11th chapter 5, that is in cell in biology. In previous lecture we have studied about what is the general structure of a cell, what is the general information of the cell, what are the characteristics which is present inside this cell, and the component which possess a specific characteristic. Because of that only characteristic, this cell is known as a living things. And then some scientists give the cell theory. Then what are the types of cell, that is a prokaryotic and eukaryotic cell. We have detailed studied about prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Prokaryotic cell, that is in bacteria. Eukaryotic cell, that is in plant as well as animal cell. We also studied the difference between plant and animal cell. So now we will study about each and every components of a cell. So as we know, the cell having various type of components. For example, cell is having an outer envelope which possesses cell membrane, capsule, cell wall. Then it also have an internal component which possesses inside the we can say cytoplasm. For example, various membrane bound organelles are present like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, lysosome, ribosome. So these are the organelles which is present inside the cell. So from now we will study about components of a cell. Each and every components of a cell. What is the structure of that component and what functions these components are performing. So the first and foremost component of the cell, that is an cell membrane. So as we know, this is suppose a cell. So suppose this is cell, it is nucleus. So we can say, so first and foremost, this boundary which surrounds this cell and which is present in each and every cell. This boundary, or we can say this membrane, is present in each and every cell. This membrane is known as a cell membrane. So this is known as a cell membrane. It is also known as a plasma membrane. And this membrane is also known as a plasma lemma. So all are one of cell membrane, plasma membrane and plasma lemma. This boundary of this membrane is known as a cell membrane, plasma membrane or plasma lemma. तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं. It is also known as cell membrane, plasma membrane as well as plasma lemma. Now, so before we understand what is the characteristic, what is the function of cell membrane, we should know the structure of a specific cell membrane. So here some scientists give their own specific structure of a cell membrane. So mainly three structure was given by the three different scientists. First structure was given by Dennelly and Davison in 1953, and the structure called as a sandwich model. Why it is known as a sandwich model? Because Dennelly and Davison says that this lipid bilayer so this type of a structure is given by Dennelly and Davison. He says that the main component of plasma membrane, that is lipid as well as protein. So Dennelly and Davison says that this lipid is sandwiched between two protein layers. So that's why this structure or this model named as a sandwich model. So here Dennelly and Davison says that this protein is a fibrous protein. So this protein which is present in this sandwich model is a
fibrous protein. This protein will sandwich the lipid in between these two bilayer, and this was given by the Dennelly and Dawson. Then this structure is discarded इसलिए क्योंकि जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो जो फंक्शन है डेनेली एंड डेवसन का जो मॉडल था वो परफॉर्म नहीं कर पाता था. वी नो द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज एन ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह को मॉलिक्यूल है उसको क्या करता है, वो अंदर आने देता है या तो बाहर जाने देता है, जो कि ये डेनेली एंड डेवसन का जो मॉडल था सैंडविच मॉडल वो परफॉर्म नहीं करता था. दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड. Then another model was given by the Robertson in 1959, and the model name is a unit membrane model. The only difference between sandwich model and unit membrane model is of a protein. Here, Dennelly and Dawson says that the protein was a fibrous protein, and Robertson says that the protein was a we can say globular protein. No other difference is there. Here also the lipid is present inside the two protein bilayer, but here the protein is a globular protein and here the protein is a fibrous protein. Both the models was discarded because that was they will not fulfill the characteristic of a plasma membrane. Then another model which is given by Singer and Nicholson in 1972, which is known as a fluid mosaic model. So this fluid mosaic model, we can say it is accepted because whatever the characteristic the plasma membrane should possess, this whole characteristic is fulfilled by this fluid mosaic model. So you can see here this is a structure of fluid mosaic model which is given by Singer and Nicholson in 1972. Okay. Now what are the components of plasma membrane? So generally, as we studied the plasma membrane which is present outside the cell, which we can say which will cover whole the cell. Cell possesses cytoplasm, and this cytoplasm we can say it is covered by the membrane which is known as a plasma membrane. And also we have studied the plasma membrane is semi-permeable in nature, or we can say selective permeable in nature. Why it is known as semi-permeable or selective permeable? Because this plasma membrane allows the selected molecule to come inside the cell, and it allows selected molecules to go outside the cell. So whatever the transportation which is carried by the plasma membrane, it is we can say selective. Some molecule can enter inside the cell and some molecule can go outside the cell. Not all the molecule can transport in and out the cell, and this characteristic is because of this plasma membrane. So that's why it is known as a semi-permeable, or we can say selective permeable in nature. So what are the components from which our plasma membrane is made up of? First component, that is lipid. Second component, that is protein, and third component that is an carbohydrate. So first one, that is a lipid. Here you can see this is a phospholipid bilayer. So you can see here this kind of a structure. You can see here this structure is in a two layer. That's why it is known as a bilayer. And this one structure is known as a phospholipid. इसको क्या बोलेंगे? phospholipid. दो लेयर है इसलिए इसको बोलेंगे phospholipid bilayer. So यहाँ पर जो भी लिपिड होगा वो कौन सा होगा? phospholipid. So phospholipid का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा.
ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एन फॉस्फोलिपिड। सो दिस इज हेटेरोफिलिक head. Obviously this looks like a head, that's why it is known as a head, and this is looks like a tail, that's why it is known as a tail. So here the nature of this head is a heterophilic in nature, that's why it is known as a heterophilic head, and here the tail nature is often hydrophobic, and that's why it is known as a hydrophobic tail. Here this head is made up of two components, that is glycerol plus phosphate group. ये जो हेड है वो किसका बना होगा, ग्लिसरॉल एज वेल एज फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो पूरी की पूरी टेल है विच इज मेड अप ऑफ एन फैटी एसिड. So generally this we can say phospholipid is known as it is amphipathic in nature. Amphipathic का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट्स है, हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है. हाइड्रोफिलिक भी को हम दूसरी लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं पोलार हेड, और हाइड्रोफोबिक है उसको हम बोल सकते हैं नॉन पोलार टेल. So hydrophilic, that is an water loving, it can interact with an water. Obviously polar nature का है, water is also polar in nature, and that's why this head group can interact with an water molecule. They are hydrophobic, it is not polar in nature, and that's why this cannot interact with an water molecule. ये जो tail है it cannot interact with an water molecule, and that's why it is known as an hydrophobic tail. So this is the structure of a phospholipid. So here this kind of structure you can see it is found in a two layer, and that's why it is known as a phospholipid bilayer. So whatever the fluidity, here you can see fluid mosaic model. Fluid, the nature of this membrane is semi-fluid in nature. It is having a fluidity, and this fluidity is because of this phospholipid. Phospholipid का इस तरह से अरेंजमेंट होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसा होगा, फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइड इन नेचर. मोज़ेक इसलिए बोल सकते हैं मोज़ेक का मतलब होता है कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन फ्लूइड मोज़ेक दैट इज एन वी कैन से दही वड़ा. सो दही यू कैन सी इट इज लाइक ए लिपिड एंड वड़ा whatever present inside the dahi, it is act as an protein. So जैसे दही वड़ा का स्ट्रक्चर होता है, जो दही होता है वो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड इन नेचर. Likewise this lipid is also semi fluid in nature, और वो जो वड़ा होता है which is embedded inside the dahi, here also this protein is embedded inside this lipid bilayer. So it is structure will seems like a fluid mosaic model. So whatever the fluidity, it is because of this lipid present in this model. Now another component of cell membrane, that is a protein. So you can see here these are the protein. Here mainly two types of proteins are found in fluid mosaic model, that is a peripheral protein as well as integral protein. Peripheral protein इसलिए बोलते हैं क्योंकि obviously it is present on the periphery. ये जो lipid bilayer है उसके ऊपर present है, that's why it is known as a peripheral protein. It is also known as an extrinsic protein. इसका दूसरा नाम है extrinsic protein और external protein. Extrinsic protein भी बोल सकते हैं, external protein भी बोल सकते हैं, और peripheral protein भी बोल सकते हैं. Another protein
इंटीग्रल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। यू कैन सी हियर दिस इंटीग्रल प्रोटीन इज एम्बेडेड, पूरी की पूरा है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर है वो स्पान करता है ऊपर से नीचे की तरफ, वो क्या करता है पूरा का पूरा दिस विल स्पान द लिपिड बाइलेयर एंड दैट्स व्हाई इज नोन एज एन इंटीग्रल प्रोटीन। इसको इंटरनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इंटरनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं एज वेल एज इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। Now you can see this peripheral protein is interacted with this hydrophilic head of this lipid bilayer, and here whatever the interaction is there, it is an electrostatic interaction। यहाँ पर प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के साथ जो जुड़ा हुआ है और जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, जो इंटरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो कौन सा इंटरेक्शन होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो यहाँ जुड़ा हुआ होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक टेल है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, इट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एंड दिस इंटरेक्शन is in between this phospholipid as well as amino acid which is present inside this protein। यहाँ पर पोलर हेड ग्रुप है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से अमीनो एसिड होंगे? पोलर अमीनो एसिड होंगे। यहाँ पर जो अमीनो एसिड है which is bounded to an hydrophobic tail of a phospholipid bilayer, and this why यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड होंगे वो कौन से होंगे? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। So जनरली ये जो प्रोटीन है वो काम क्या करते हैं? It is act as a carrier molecule or we can say it is act like a channel। जो भी मॉलिक्यूल है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को we can say ट्रांसपोर्ट करना है, तो obviously वो क्या करेगा? It cannot transport it through this lipid layer। लिपिड लेयर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कोई बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, इट कैन पास थ्रू दिस लिपिड बाइलेयर। और कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं व्हिच कैन नॉट पास थ्रू एन लिपिड बाइलेयर। सो दैट्स व्हाई हियर दिस प्रोटीन विल प्रोवाइड ए चैनल फॉर पैसेज ऑफ एन लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एज वेल एज इनसाइड टू आउटसाइड। So the main function of transportation is because of this protein molecule which is found inside this plasma membrane. Now next component, that is carbohydrate। So carbohydrate generally bounded to a protein as well as lipid। So carbohydrate chain which is bounded to a protein, that's why it is known as a glycoprotein। The carbohydrate chain which is bounded to a lipid, that's why it is known as a glycolipid। और एक कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका मेन काम है इट इज एक्ट एज एन सेंसरी ऑर्गन। ये क्या करता है? इट इज एक्ट एज ए सेंसर। सेंसर का काम जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज है उसको वो सेंस करता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। कई मॉलिक्यूल है उसको अंदर आने देता है, कई मॉलिक्यूल है जिसको वो बाहर जाने देता है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिसको अंदर आना है, वो कौन सेंस करता है, वो कौन डिसाइड करता है? ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है वो सेंसर का काम करता है विच विल सेंस द मॉलिक्यूल कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है उसको अंदर जरूरत है, तो वो जरूरत वाले मॉलिक्यूल है उसको वो प्रोटीन के थ्रू या तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास करवाता है। नहीं जरूरत होती है तो ऑब्वियसली वो मैसेज पास करता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल को वो पास होने नहीं देता है। सो हियर दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज एन सेंसरी मटेरियल, इट एक्ट एज एन सेंसर। Now next one, there is a function. So whatever this we studied, there is a
plasma membrane, that is fluid model. You can see here another component of this plasma membrane, that is cholesterol. So you can see here this cholesterol. This cholesterol is present in between two phospholipids. यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फॉस्फोलिपिड के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है। कोलेस्टेरॉल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो भी फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसे फ्लूइड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल क्या करता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक तेल है उसको एक दूसरे के साथ स्टिक होने नहीं देता है, चिपकने नहीं देता है, जिसके कारण ये जो लिपिड बाइलेयर है उसकी फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहती है। अगर कोलेस्टेरॉल नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो लिपिड बाइलेयर है उसकी जो ये फैटी एसिड की चेन है, हाइड्रोफोबिक टेल है, वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, जिसके कारण उसका जो मेन नेचर होता है जो कि फ्लूइड होना चाहिए वो नहीं रहेगा। सो मेन फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, कोलेस्टेरॉल। सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो obviously first and foremost function of a plasma membrane, it covers the cell, it covers the whole cell, it covers the cytoplasm. So the intact structure, a specific structure we can say is because of the plasma membrane. ये जो सेल है वो इंटैक्ट रहता है, जिंदा रहता है, क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म है वो ऑब्वियसली बिखर जाएगा, उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स वो बिखर जाएंगे और सेल है वो डेड हो जाएगा। सो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एन कैन से सेल इज लाइव बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू। कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से सेल है वो जिंदा होता है, लेकिन उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज एन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन सेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी कंपोनेंट के अंदर नहीं है तो उसको हम सेल नहीं बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ही उसको हम सेल बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज एन ट्रांसपोर्टेशन। So this is a main function of plasma membrane, that is in transportation. As I said, this plasma membrane is selective or semi-permeable in nature, and that's why it can transport the molecule from external environment to internal environment of the cell, or outside to inside, as well as inside to outside the cell. So here transportation, यहाँ कई तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जनरली में यहाँ पर दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होगा जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता चलता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑब्वियसली कोई मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, सेल से बाहर से अंदर जाएंगे या तो बाहर से अंदर आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ये जो वर्ड है उससे भी थोड़ा आइडिया हमें मिल जाएगा। एक्टिव, अगर हमें एक्टिव रहना है, पूरे दिन एक्टिव रहना है, तो ऑब्वियसली हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और हम एक्टिव रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगा, इट्स नीड एन एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो भी मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट होना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वही मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है उसका कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई। तो अगर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देन वी कैन से इट इज ट्रांसफरिंग अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या है, इट विल ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वो लो से हाई की तरफ हो। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन हाई है, फिर भी वो क्या कर रहा है, लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि इजी नहीं है और जो कि अपने आप नहीं हो सकता। और इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी। अगर ट्रांसपोर्टेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो उसमें कोई भी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन हाई है। ऑब्वियसली अगर आपने दो ग्लास लिए हैं जिसमें एक में पानी कम है एक में ज़्यादा है, दोनों को अगर आप पाइप से जोड़ देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा पानी है उसमें से कम पानी है उसमें इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपको हाथ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि कम पानी है उसमें से ज़्यादा पानी वाले ग्लास में आपको पानी ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हाथ से उसको डालना पड़ेगा, आपको ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर ट्रांसपोर्टेशन है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। और अगर ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इट रिक्वायर्स द एनर्जी। सो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स द एनर्जी। यहाँ पर एक दूसरी रिक्वायरमेंट भी होगी कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो लिपिड बाइलेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको क्या करना, किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। सो हियर इट आल्सो रिक्वायर्स द कैरियर मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर यहाँ से ये लिपिड बाइलेयर है उसमें से जा नहीं सकता वो मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। और वो कैरियर मॉलिक्यूल है उसका काम कौन करेगा, this protein act as a carrier molecule which carry the molecule from high concentration to low concentration with the help of energy, and this transportation is known as an active transport. Second transportation is a passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो भी दो तरह का होगा, एक होगा सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एन एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या होगा, the transportation is according to concentration gradient। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है तो डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, सो नो एनर्जी इज नीडेड। यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह के होंगे, एक होगा सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होगा
सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज अ टाइप ऑफ एन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन होंगी। दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाटएवर द ट्रांसपोर्टेशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट एक ही डिफरेंस होगा यहाँ पर, सिंपल डिफ्यूजन में उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर से वो अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि उसको चैनल की जरूरत पड़ेगी, आयन चैनल्स होंगे, कैरियर मॉलिक्यूल्स है उसकी जरूरत पड़ेगी। और उसका काम कौन करेगा?